Because if mind is not basically having a peace mode, you can't judge anyone, you can won't give interviews. Whenever I take a class, I feel it's a time I'm sitting in an interview. So now it's a time I'm sitting in an interview and discussing why state management. And I will try to give you several definitions and implementation. Is a great link session in code project. They're given every steps carefully. Absolutely. Why state management? Why you wanna go with the state management? And why do we do state management? My first definition. Listen. There is a SPX space. There is a code behind. The SPX space is being handled by HTTP handler. The execution of the page and the compilation of the page is being handled by the handler. CS by compiler. In a window form, there is a CS. So I required compiler to compile the Windows form. But in case of ASP.NET, the CS is called code behind, and user never requests CS. He requests endpoint called URL called ASPX, PHP, ASP, Sublet, whatever. Who can handle the ASPX space? The handler. There is a selective class. There is a class called page handler factory, which comes under a system.web.ui namespace. Page handler factory class encapsulate all the background features to compile as well as to execute the ASPX. For every extension in .NET, for technologies wise, because compiler never says if extension is called CS, I can compile by CSC compiler. Listen, you can have Ramesh, open command prompt, open notepad, save the file name called ramesh.cs. No, ramesh.anurag, ramesh.ram, ramesh.uncle, doesn't matter. Ramesh.dinesh, doesn't matter. Extension doesn't matter in case of window programs or CS or .VB. Why extension matters in technologies? If I change ASPX to ASPP, it won't execute. If I change ASMX to ASMXP, it won't execute. If I change extension called SVC to SVCC, WCF, it won't execute. But if I change my extension in CS, it can execute. So ASP.NET is a handler-based architecture. Answer. What is ASP.NET? It is a handler-based architecture. It is a event-based architecture. It is a delegate-based architecture. It supports HTTP as a protocol. What is ASP.NET? It is a handler-based architecture. It is a event-based architecture. It is a delegate-based architecture. It is an architecture support protocol HTTP. If ASP.NET does not support HTTP, then how client can request to ASP.NET? It is a pipeline between client and server. HTTP pipeline. What is pipeline? Recall the days in your native place. There is a big hole. It's called Surang. Other end and this end.
Recall those days, third or fourth class, we have 2 marches. And we one dhaga, string. I do some action here, it reflects toward other end. So how to end can communicate? How to end can communicate? At one end ASPX, at one end browser. There is a HTTP pipeline. By this pipeline, I can communicate 2 points. Response, request, several things comes under pipeline. But these two end, one end on the browser, one end on the ASPX, is stateless. End to end can be connected by HTTP, which comes under pipeline. Everything comes under pipeline. This time, me and you, whose pipeline? The medium. Sense, behavior, my eyes contact with you, my voice, my emotions is transmitting to you. And similarly, from you to me, via the medium only. So pipeline is a medium between 2 points. And within this 2 points, if I lose any contact, I cannot have a complete with you transformation. Listen to me, look at me, talk to me, understand me. But if you talk with a man who is listening you but not following you, it means it's not a better medium then. I want to have a complete transparency between 2 points. Cessation, application, request, response, everything has to have a part of that medium. And you can have a best medium between you and your mother. Because that lady only not communicate to you. He understand you, how are you nowadays. So one end point, connect to other end point by pipeline. It is a medium. And rest are supportive elements within the pipeline. So pipeline is known as medium. Pipeline is known as called path to move from one point to other point. And within the pipeline, the top is called HTTP. And rest are comes under HTTP. This digital camera is also having a pipeline. It's called lens. By lens, I can see you. By lens, I can see you, okay? And by same lens, I can feel you. But the man who's sitting on the lens, that's important. So client request a page by browser. Same client after few minutes again request a same web page, or same client request a page simultaneously or multiple times in certain interval. But handler of ASPX says ठीक है, तुमने मेरे बीच में एक तार बिछा दिया, माध्यम बिछा दिया, HTTP पाइपलाइन. बट याद रखो, जब मैं तुमसे पहली बार मिलूंगा, बात करूंगा, I can give you a response. After that, I don't know who are you. It means HTTP handler compile your request, execute your request, and after that it gives you HTML file.
once compiler has given the output of requested file in HTML file on the client side, then why HTTP will maintain your session or your state? It is a stateless. HTTP is stateless. Why it is stateless? Because I am giving you the output of grid view in HTML file. Once you have got my output, this is the point to remembering you who are you. HTTP is stateless. It never be stateful. It never be stateful. If it is stateful, it means he is not giving the output to the client. Rather than he is giving a reference of output to the client. I can show you. From this point, you see my hand, finger. But you have to have a continuous memory address to point my finger. It means the madhyam in between, HTTP is giving you the reference of this finger at your eyes. It is stateful. But if you make a technology stateful, don't forget, the multiple clients are requesting to me. I cannot teach in a center single student every time. I cannot have with anyone in this world as a stateful architecture. You come for a class, attend my class, go back. Again comes for a class, other students comes for a class, attend my class, go back. Otherwise, if I go for stateful, it means in a whole day, I am teaching single batch. Whole the net cycle you have to maintain a proper connection. Exactly. So strict technology never is stateful. But if window, Because the man who is requesting, the man who is giving output, in between, no madhyam is there, no pipeline is there, no protocol is there, because it is a stand-alone application. It means I made a window form, I request a window form from the same system, not from multiple systems. That's why we don't want medium pipeline, तार बिछाना medium. पहले जो आप बोलते what is pipeline? Uncle knows what I'm trying to convince. There is a पहले खोदो मैं भाई को देखता हूँ. He is an IGL. पहले वो गुड़गांव गाजियाबाद जाता है इसके अंदर नगर. वो है हाँ वो पहले खुदाई करता है और उसके अंदर क्या वो तार डालता है केबल. He is an IGL. अब आपको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है. मेरे अपार्टमेंट में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं. अंकल महीने की हमारी आती है खाने का 700 रुपये. सिलेंडर लेते थे कम से कम 3 सिलेंडर. आई डोंट वांट सिलेंडर. कि मसूर अंकल में भी आ चुका है, बोलो कौन? गैस पाइपलाइन. इतना यूज करा तब 700 रुपये का बिल आया पूरे महीने का. मीन्स थ्राइस टाइम्स आई एम सेविंग. And as power you have got a gas. Switch on, use your cylinder, your chulha, make khana pina and off it. There is a meter, everything is there. Cost 22 rupees per kg. After all the charges. And 22 into 14 kg cylinder cost. It's optimized. No memory leakage. transportation. So how I can get us that connection? Due to pipeline. So pipeline is a medium between 2 points. Come back to point. But beta in window form,
no pipeline is there. If no pipeline is there, no protocol is there. But here, it is a technology. Technology means many to one relation. So many clients request the same ASPX, and handler of that ASPX is remembering all the clients together at the same time. So how one handler, listen, very good, superb, how one handler can handle multiple requests. So what he does, it gives the output of that page in HTML file, rather than he's not keep remembering every client every moment. You request to me, you take output, go back. Other user request to me, pipeline. It means multiple clients request one ASPX page. Doesn't mean every client is getting the output at the same time, because pipeline supports threads. Pipeline. I'm in queue. HTTP pipeline class supports MT architecture, multiple thread apartment. That's why multiple requests from different corner can request the same ASPX space. But baby, there is a single handler on the IS. The pipeline supports queue, but handler does not support queue, because at other end uncle is sitting in the shop as an owner. There is a peon is maintaining a pipeline called queue, and at one time, at any point of time, it can handle only one request. There is a queue, and there is a counter, and there is a man behind the counter. So one counter man is a handler. Every day he handles 80 customers which comes in a queue, but doesn't mean single handler called that man behind the counter is handling 80 requests at the same time. Sir, what is the interval for getting the response for a single request? For a single client on the ASPX, it is written 90 seconds. 90 seconds. It is optimized. It also depends upon what kind of request. Nothing like. He says on ASPX, I have got 90 seconds and session 20 minutes. Means handler has to compile and execute the output within 90 seconds. For a single client. For a single client. But according to CPU, motherboard and performance, 90 seconds is enough. It's called 1.5 minute. So by default time was the maximum time? It is 90 seconds maximum time. Can we change this? Or You can change, but if you change this time, it depends on CPU performance. सर जब मुझे फाइल अपलोड करनी होती है, एक फाइल अपलोड करनी होती है, तो लाइन द रन चेंज करना ही नहीं बेटा, वो अलग चीज होगा। मैं क्या हूँ, एक पेज को एग्जीक्यूट करने में तो चेंज तो हम रन टाइम पे जाया करते हैं, और देख में चेंज करते हैं। बेटे वो अपना आउटपुट दे रहा है, आउटपुट डाउनलोडिंग चल रही है। मैं हैंडलर की बात कर रहा हूँ। एक हैंडलर एक पेज को 90 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। अगर 90 सेकंड में पेज एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपको मिलेगा स्क्रिप्ट टाइम आउट। ये पन्ना, एक पेपर का पन्ना, आपको 2 मिनट के अंदर पढ़ना है। सेशन टाइम आउट आता है बेटा, सेशन टाइम आउट पता क्या होगा? एक यूजर साइट में कब तक है, सुनना, एक यूजर साइट में कब तक है, ये सेशन टाइम आउट हो गया। और एक यूजर को एक हैंडलर एक वेब पेज एग्जीक्यूट करके कितने सेकंड में देता है। आप सेंटर में 7 बजे आए या 8 बजे आए, आप जाओगे, जब भी तुम जाओगे, ये आपका बेटा सेशन टाइम होगा। बट तुम मेरी क्लास का एक पन्ना कितने देर में पढ़ के बतलाओगे, ये क्या बोले, स्क्रिप्ट टाइम आउट। अगर सेशन टाइम आउट आ गया, आई हैव सेवरल एल्गोज, आई कैन गो फॉर बूटिंग माई परफॉर्मेंस। बट बेटा स्क्रिप्ट टाइम आउट आ गया, आई एम इन अ पैथेटिक मोड।
स्किप टाइम का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल कंट्रोल्स तुम एक ही पेज के ऊपर रख रहे हो. डोंट मेक अ बेबी पेज हेवी. इफ यू मेक अ पेज हेवी, your handler will not execute the output of that page within the what 90 seconds. That's why don't use much and more Photoshop and Flash and the controls. Within this beta, I never get session timeout. I get page is expired. I sometimes open the site of gift का site कौन होता है? Archies and HindiSongs.com. Concerned to music library, I feel ridiculous and disgusting because it is tough to execute a page on a certain time, because so execution of the page depends on the size of the page. Beta, if you increase 90 seconds to 100 seconds, no issue at all. It means that your client has to wait the what 100 seconds. If you decrease the time, means you're making a client as a more smooth, but 90 seconds अगर कम करोगे तो तुम कितना फास्ट करोगे, देखते हैं कितना फास्ट करोगे. This optimized time को 90 seconds. That's why the architecture says of high performance in website. Don't try to make a page heavier. If you make a page heavier, sometimes might be or maybe you can get a page is expired or page is what, or skip timeout. Session concerned to website. Man request a website, and how long he stay on the website is called session. And within this session, he requests multiple web pages. Am I right? But per page is a 90-second execution. बेटे पेज का याद रखना, पेज का सेशन नहीं होता है. एक साइट का सेशन, एक यूजर का साइट को रिक्वेस्ट करना वो सेशन. कि बेटे सेशन का मतलब ये होता है कि आप यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रहे हो. और मैं बात कर रहा किसकी, बोलो पेज की. कि मेरा जो टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट, उसमें पेज की बात है. पूछो क्यों? पहले हमें ये प्रूफ करना है वाई HTTP इज स्टेटलेस, और तब से यही प्रूफ कर रहे हैं. अगर टेक्नोलॉजी स्टेटफुल होगी तो सोचो क्या, how one handler can have a multiple reference of multiple users, rather than he don't make a reference, he makes a what called a value architecture. You request to me, I can give you output of that path. You request to me, I can give you Supari, but I will not give you a reference of my shop. It means per request it makes output. Okay, so ASPX turns into HTML file. It means अगर एक ASPX का आउटपुट HTML में आ गया, इसका मतलब उस यूजर का उस पेज से कोई भी रिश्ता नहीं. So तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हो बेटे? Means a man is requesting a web page, and handler of that page is giving the output of that page into HTML file. तो बेटे सर्वर क्लाइंट के पास एडिट नहीं आई, CS नहीं आई, लॉजिक नहीं आया, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आई, ओनली उसकी बोल के आई आउटपुट आई. So when client has got the output of that ASPX, then how server can recognize that client who has requested me? It is a call by value. So how you can make a session between that client for the particular page? अब देखो यार, तो बेटे आपको बतलाना है कि ASP.NET डिस्कनेक्टेड को सपोर्ट करता है, डिस्कनेक्टेड को. और बेटे याद रखना, आपके एडेप्टर भी सेशन सपोर्ट करती है. अगर डेटाबेस का 12 रिकॉर्ड्स एक टेबल का एडेप्टर के द्वारा डेटा सेट में आया, याद रखना बेटे, एडेप्टर के द्वारा डेटा सेट में आया, और मैं गधे कल पूछो एडेप्टर से तुमने कितना रिकॉर्ड दिया डेटा सेट को, वो बदतमीज बोल दे मेरे को याद नहीं, उसको जान मार दूंगा.
जो काम करेगा उसके पास सेशन होना चाहिए। वो क्लाइंट चला गया, वो कस्टमर चला गया, मेरे बिहाफ में कितनी बिलिंग हुई, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, मैं सारा तुम बिल दिखाओ मेरे को, मैं उस क्लाइंट से नहीं मांगूंगा। तो बेटे एक ASPX स्पेस का एस्टिमेल बन गया, तो गधे एक ASPX का कितना एस्टिमेल बना? हाउ डू आई नो? कितना बना, मतलब कितने लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करे? दीप्ति मेरे बिहार में कितने एडमिशन हुए? 5, उसका बिल दिखाओ मेरे को। रिचा इसको पेपर पे एक्सेल शीट पे लो। क्यों? CA कल मुझे ही पकड़ेगा, तुमको नहीं पकड़ेगा। तो बेटे एडाप्टर का सेशन सपोर्ट नहीं करता। हैव यू गॉन मैड? अगर एक एडाप्टर डेटाबेस का एक टेबल अगर बेटे फिल करता है डेटा सेट में, जाके झंकार से पूछो कि अगर एक एडाप्टर अगर डेटाबेस का एक टेबल अगर फिल करता है डेटा सेट में, तो बदतमीज उस एडाप्टर को पता है कि हमने कौन कौन सा रिकॉर्ड फिल किया। बोलो कहां पे? डेटा सेट में। उसकी एक कॉपी अपने पास रखता है और एक कॉपी है। वो तो बेटा कनेक्टेड मोड है ना, तो कब रेफरेंस है, वो स्टेटफुल है। मेरे सामने एडमिशन हो रहा है या हम ले रहे हैं एडमिशन, हम खुद ले रहे हैं एडमिशन, हम खुद इंक्वायरी हैंडल कर रहे हैं, और मेरे बिहाफ पे इंक्वायरी हैंडल हो रही है। तो मैं आऊंगा लौट के, आप मेरे को वो दिखाना, इंक्वायरी फॉर्म दिखाना। सर उसमें 12 बच्चों का नाम लिखा हुआ है, आपने 12 को कॉल किया, उसका फीडबैक लिखो उसके ऊपर, इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, रीजन भी क्या वो भी लिखो। तो मेरे को मेरी नेगेटिव फीडबैक तो नहीं पढ़ाने की, वो भी लिखो उसको। आई वांट टू लर्न फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सर वो अगले महीने ज्वाइन करेगा, ओके। सबको डालो कि 12 तारीख से पहले कोई बैच नहीं स्टार्ट होगा, आई एम इन बिहार। तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ASPX अगर ब्राउजर से स्टेटफुल है तो सोचो क्या होगा। मतलब मल्टीपल यूजर्स उस ASPX से बोलो क्या है, कनेक्टेड है। ये टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे बेटे, टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए डेटा रीडर याद रखना, इसलिए बेटे डेटा रीडर टेक्नोलॉजी में सपोर्ट नहीं होता। कहां पे? SOA में। इसलिए डेटा रीडर सपोर्ट नहीं होता आपके वेब सर्विस में और WCF में। अगर होगा, जितने क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे WCF को वाया प्रॉक्सी, हर से बोल क्या होगा, कनेक्टेड मोड होगा। एग्जैक्टली। तो बेटे ये थोड़ा टफ हो गया बोलना। स्टेटलेस का मतलब क्या? स्टेटलेस का मतलब मैं तुमको यहां बैठा के नहीं रखूंगा, तुम बस बैठो, मैं तुम आउटपुट दे रहा हूं और आउटपुट लो, यहां का एरिया खाली करो। अब देखो ये मैंने कहां से बढ़ा देखी, स्टेट। अगर बेटे एक सर्वर एक हैंडलर अगर रिक्वेस्ट किस पेज का हुआ उसको रिकॉग्नाइज करके रखे, तो किस बात का स्टेट मैनेजमेंट, किस बात का? अब ये पढ़ो, मैं दिखाता हूं। मैं यहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा, ये यहां नहीं मिलेगा। स्पीड एंड नेट का यार, बेटे अंकल इसको पढ़ना, ओ माय गॉड आपका जिंदगी बदल देगा लिंक। इससे अच्छा समझाने की ताकत किसी वर्ल्ड में किसी बंदे को नहीं हो सकती। एक सिंगल पेज कम से कम 50 पेज के बराबर ये लिंक है और एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, व्हाट इज सेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अरे बेटे दिनेश बोलो बच्चों को सेंटर में इंटरनेट ना करें। अरे यार एडिट बच्चे आ गए सेंटर में, इस बार पढ़ाने का मन नहीं करता है मुझे। परसों एक बच्चा गाना डाउनलोड कर रहा था बैठ के पीछे, और परवाल बच्चे को डॉट में पढ़ा दो बैठ को।
शो चल रहा है इसमें। लो सुनो आंसर। अपाची का साइट है बेटे, जिसने अपाची सर्वर बनाई थी। कोई भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का स्टेटफुल नहीं हो सकता। फिर बेटे विंडो फॉर्म और वेब पेज पे डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए स्टेट मैनेजमेंट इज नॉट पाए जाते हैं इन विंडोज फॉर्म। क्यों? वहां पाइपलाइन नहीं है, वहां प्रोटोकॉल नहीं है। सिंपल कौन है? डीबगर है। बोलो कौन है? मेरे हाथ में कंपाइलर है। और वहां पे क्या है? रिक्वेस्ट है। और कंपाइलर किसके पास है? हैंडलर के पास। यहां ऐसे क्लिक करते हैं कंपाइल हो जाता है विंडो फॉर्म पे। वहां तुम रिक्वेस्ट करोगे, वो हैंडलर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, और हैंडलर क्या करेगा? कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा 90 सेकेंड्स के अंदर। और आपका आज ये बात मैकडी भी बोलता है, आप ऑर्डर प्लेस करो पिज्जा हट में, इतने मिनट के अंदर अगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, यू विल गेट अ पिज्जा फ्री। अब बेटे पढ़ इसको, इससे अच्छा कौन तुम दुनिया पढ़ा सकता? अपाची का वेब सर्वर है, टॉमकैट यार। ओरिजिनली फर्स्ट वर्ड ही पढ़ो इसका, ओरिजिनली, ओरिजिन। HTTP was designed request and response made oriented protocol that made no special provision for stateful sessions। और ऐसा हो रहा है तो बेटे वो दुकानदारी फिर नहीं होगी। अरे एक कस्टमर सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान पे बैठा है तो दुकानदारी फिर नहीं होगी। राइट अंकल? वो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ बिजनेस है, लॉस ऑफ बिजनेस है। B2C, C2B। टेक्नोलॉजी इज meant where multiple clients can get a request and he can get an output simultaneously. But don't try to put bloody pending of clients with a server. You will lose your name and fame. So the protocol that have no special provisions, किसी भी क्लाइंट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्या लिखा है बंदे? That made no special provisions for stateful session during a cross as HTTP protocol grew in popularity and additions more and more system designed to use, because till uncle Ramesh, till uncle I was running my program by the compiler. It means my hand and my mouse is a handler to compile the program. But now if you request the web page, then handler will what? Compile the program. आज अंकल मेरा हैंडलर बोलो कौन हो गया? कोई और हो गया। कि मैं कल तक उस काम को अपने से करता था, आई वॉज हैंडलिंग द वर्क। आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया कि मैं जब 17 साल पहले बिहार छोड़ा तो मैं एक अंकल वकील थे, तो मामा बोलता था उनको, तो वो अप्रॉक्स उन दिनों 60 के थे अप्रॉक्स, ठीक थे, मस्त आपके जैसे मस्त। वो मेरा मकान रोड के साइड पे था और उस गली से वो निकलते थे और वो ऐसे क्रॉस करके कचहरी जाते थे। मैं उनको 17 साल के बाद देखा, वो आदमी फाइट कर रहा है उस रोड को क्रॉस करने के, और किसके द्वारा क्रॉस कर रहा है? उस छड़ी के द्वारा, स्टिक के द्वारा। वो क्या बोलो? हैंडलर, जो कल तक दौड़ सकता था और दौड़ने के काबिल नहीं। उनको मैं बोलता रह गया कि अंकल मैं आपको मामा जी कार से छोड़ देता हूं। बोले नहीं बेटा, लेट मी फाइट।
एंड आई विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ। और ये बोल के चले गए मेरा दोनों बेटा लंदन में जाके नालायक बस गया, और उनको मैं लास्ट तक देखता रहा। और 100-150 मीटर का फासला है मेरे घर से मेरा कोर्ट, 100-150 मीटर होगा। उसको क्रॉस करने में कितने मिनट लग गए आई कैनॉट टेल यू। इट्स अ ह्यूमन लाइफ साइकिल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, कल मैं अपने से बैठ के विंडो के प्रोग्राम को रन करता था, आज मैं वेब का प्रोग्राम किसी हैंडलर के द्वारा रन कर रहा हूं। और हैंडलर बोलता है जब तुमको आउटपुट मिल जाए तो मेरा गली खाली करो, मतलब तुम मेरा एरिया खाली करो। बैंक बोलती है और लाइन में सामान लो, चलते बनो यहां से, अदरवाइज यू आर इंक्रीजिंग अ लोड ऑन द सर्वर। You get a point? So, well, so HTTP protocol given this and this, इसको बेटे पढ़ना मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, अल्टीमेट मजा आ जाएगा। इससे अच्छा हमें कुछ नहीं लगा जब मैंने इसको पढ़ा था एक बार फर्स्ट टाइम। तो बेटे मैं ही बोल रहा हूँ अनुराग, जो काम मैं कल तक अपने हाथ से करता था, और वो सारा काम बोलो कौन कर रहा है? हैंडलर कर रहा है। और हैंडलर इसलिए कर रहा है कि मेरे रिक्वेस्ट और पेज के बीच में बोले गैप है, इसको व्हाट रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। तो बेटे अगर मैं लोकली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं वेब पेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विंडो फॉर्म की बात कर रहा हूं, मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बेटे मैं ही आउटपुट देख रहा हूं। बंदर वहां पे क्या हो रहा है? एक आदमी मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है और बोलो क्या बोला, मल्टीपल आउटपुट मिल रहा है। मैं देखता हूं किस चीज के द्वारा रिक्वेस्ट हो रहा है, और ये भी देखना है रिक्वेस्ट कंप्लीट कौन कर रहा है। अच्छा, रिक्वेस्ट हो रहा है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? बोलो हैंडलर। मैं दोनों का नेचर देखना है इधर। What Dipti says to me, सर मेरे बिहाफ में उस रूम के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं बैठे। It is a place only for what? Counselors and the counseling. It's a room for admission process only. Don't make a rush in that room. Am I right? उसी रूम से सेंटर चलता है, उसी रूम से फीस आती है। And she says to me, so you have to be practical for having a fees. आप अच्छा सर्विस तभी प्रोवाइड कर सकते हो जब पैसे आए। Otherwise you are making a sick industry. What? Sick industry. इसी को बोलते हैं। आप अच्छे हो but be practical in a fees. कि मैं नहीं हो पाता। So what I'm trying to convince, stateless हमें किसने बनाया? एक प्रोटोकॉल ने, और उसका बोलो हैंडलर। So protocol has made me the, और आपको बेटे लाइन मिल गया, provisions for stateless, stateful, sorry, that made no special provisions. अदरवाइज अगर आप वहां बैठोगे बच्चों के साथ तो पाइपलाइन बढ़ जाएगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होगा बोलो, क्यू में चला जाएगा, और इंक्वायरी वापस चली जाएगी। आपको जहां बैठना है बैठो, डोंट सिट दैट रूम विद द स्टूडेंट्स। मैं इसलिए बैठ जाता हूँ सोफा सेट पे, उस रूम में जाके नहीं बैठता। हाँ, मैं तब बैठता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, क्योंकि मैं इंक्वायरी नहीं करता। You get a point? So, then you start making a journey. So why do we go for? No, then you go for how to implement the what? State management. And just after that, the very first site comes, Apache के बाद, the very first chapter comes. देखो बॉस क्या लिखा हुआ है। मैं उस बंदे से पढ़ रहा स्टेट मैनेजमेंट जिसने बेटे सर्वर बनाया। मैं उस बंदे से नहीं पढ़ रहा हूँ बेटे स्टेट मैनेजमेंट जो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो कोड, हमने कोड प्रोजेक्ट से इंप्लीमेंटेशन पढ़ा, और कॉन्सेप्ट कहां से बिल्डअप किया बोलो, अपाची के साइड से।
मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूं सेंटर। तो अब यहां आ जाओ। अब बेटे इस पॉइंट पे आके वहां भी लिखा हुआ नहीं चले, आ गया। अब देखो, अब ये लाइन जो माइक्रोसॉफ्ट लिया है, देख कहां से लिया, देख अब इस गले का लाइन देख। हमने कहा ना बेटे, अगर हम जो पढ़ते हैं हम इमोशनली अटैचमेंट के लिए पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ता है फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ता है। और जब तक आपको किसी चीज से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तब तक चीजों का ट्रांसपेरेंसी नहीं। चीज आएंगी और चली जाएंगी, पर इमोशनल अटैचमेंट होगा, नहीं यार बाथरूम में, नहीं यार अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं पीएलसी, यार नहीं यार अभी तो डेलीगेट रिवाइज करते हैं। क्यों? हमें अपने काम से पैशन हो चुका है। अब देखिए अंकल, ये महान उस महान की चोरी करता है। देखिए क्या बोलता है, बस एक लाइन देखिएगा। एज इज ट्रू फॉर एनी HTTP बेस्ड टेक्नोलॉजी, वेब पेज आर स्टेटलेस। इस दुकान का सारा सामान बिकेगा, बट ये मत कहो इस दुकान का सारा सामान भाड़े पे जाएगा। इसने मेरी बात की, ये साइकिल बिकेगा। ये मत कहो कि 5 मिनट के लिए साइकिल दो मैं तुमको 20 रुपए देता, और बेचने वाला मेरा नौकर वो प्रोटोकॉल है। ट्रांजैक्शन दिखती देखती है वो हैंडलर है। बट ये मत कहो कि प्लीज इस दुकान पे आके कि तुम मेरे को भाड़े पे क्या दे दो, साइकिल दे दो। साइकिल सोल्ड होगा, बिकेगा। क्यों? कॉल बाई वैल्यू। और जो ले जाएगा उसको बिल बना कर दो, उसका स्टेट मेंटेन करो। अगर उसका स्टेट मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होगी। इसका तो तुम करप्शन क्रिएट कर रहे हो, करप्शन क्रिएट कर रहे हो। तो हर आइटम का ट्रांजैक्शन मेंटेन होना चाहिए। तो स्टेट मैनेजमेंट से अंकल क्या होता है, हर वेब पेज का ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है। कि मैं इस पेज से उस पेज पे कब गया, उस पेज से उस वेब पेज पे कब गया, मेरा ट्रांजैक्शन मेंटेन हो रहा है, मेरा रूटीन मेंटेन हो रहा है, मेरी रोटेशन मेंटेन हो रही है, और अल्टीमेटली मेरा स्टेट मेंटेन हो रहा है। और यही नहीं, आपने उस पेज को कितनी बार रिक्वेस्ट करी, ये भी एक स्टेट है। सर आप 16 क्लास में से आपने मात्र 3 क्लास लिया है मेरा। कहां से पता करा? सर मैंने अटेंडेंस से पता करा। ये भी स्टेट है। तो ये मत कहो एक पेज से सेकंड पे जाना स्टेट है, एक ही पेज को बार बार रिक्वेस्ट भी करना बोलो कौन है? स्टेट है। क्यों? हर रिक्वेस्ट पे HTML बन जाता है। कि दोबारा रिक्वेस्ट करने पे फिर से क्या बनता है बोलो? HTML बनता है। ये डिस्कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी डिस्कनेक्टेड है, वेब सर्विस डिस्कनेक्टेड है, WCF डिस्कनेक्टेड है। क्यों? ये डेटा सेट को यूज करता है। तो अडेप्टर भी अंकल सेशन मेंटेन करता है। मैं नहीं मान सकता, यही तो अंतर था इनमें और पंकज द्विवेदी में। पंकज मुझसे पूछता, याद है पंकज द्विवेदी मुझे शाम में पूछता है कि सर अडेप्टर ने अगर डेटाबेस का टेबल का 16 रिकॉर्ड डेटा सेट में दिया, क्या अडेप्टर के पास इसकी स्टेट मेंटेन है? मैं कैसे करूं? नहीं, अडेप्टर भी हिस्ट्री मेंटेन करता है। अडेप्टर के पास भी कैच मेमोरी है, उसके कैच मेमोरी में लेन देन का लेखा जोखा लिखा हुआ है, कितना डेटाबेस से लिया और कितना डेटा सेट से दिया। एग्जैक्टली यस, दिखा देते प्रॉपर्टीज के द्वारा। यही नहीं बेटा रमेश, अडेप्टर ने डेटाबेस से कितना लिया इसका लेखा सूची, और डेटा सेट से अडेप्टर ने कितना लिया डेटाबेस को देने के लिए, इसका भी सूची रखता है। बोलो कौन? अडेप्टर। मेरे बिहाफ में कौन कौन सी साइट खोली, अगर बदतमीज ब्राउजर नहीं बतला पाएगा तो क्या करना फिर ब्राउजर का? यार इसकी हिस्ट्री में आओ,
हाँ, किसी ने कैश मेमोरी रिमूव कर दी तो क्या कर सकते हैं? दिमाग लगा बेटे, दिमाग लगा, दिमाग लगा। एक टेबल का 16 रिकॉर्ड, एक टेबल का 16 रिकॉर्ड डेटा सेट में आ गया। अंकल आ गया। चलो, अंकल जी ने क्या करा, डेटा सेट पे एक नया रिकॉर्ड ऐड किया। अब कितने रिकॉर्ड हो गए? 17 रिकॉर्ड हो गए। बेटे, एडेप्टर को कैसे पता कि ये जो रिकॉर्ड है यही जाएगा डेटाबेस में? तो कहीं ना कहीं एडेप्टर डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में क्या है? बोलो, बोलना इससे प्लीज। तो बेटा बीस क्यों बोला गया? अब सुन बेटे, इनका सुनिएगा। डेटाबेस को आप ASPX समझो 1 मिनट के लिए, और डेटा सेट को HTML समझो। डेटाबेस को के टेबल को आप अंकल ASPX समझो, और उसका HTML किसको समझो? डेटा सेट को। अब बतलाओ एडेप्टर क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग ए स्टेट मैनेजमेंट। ये सालों को मैं कहां से पढ़ा पाऊं अंकल को छोड़कर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं घर में रहता हूं, मेरी वाइफ छोड़ो, मेरे बच्चे कितने बजे आए, अगर मुझे ये नहीं पता है तो फिर घर में नहीं रहता हूं। मैं घर में नहीं रहता हूं। फिर अगर मैं घर में हूं तो घर में अगर मैं सबसे बड़ा हूं, इफ आई एम नो, हर आदमी किसी का स्टेट मेंटेन कर सकता है। मैं रात में काफी गर्मी लग रही थी, हम थोड़ा AC से दूर रहना चाहते हैं रात में। मेरे को सुबह खांसी हो जाती है। मैं 10 बजे रूम से निकल गया और काफी अंदर ठंडी हवा चल रही थी रात में, अच्छी खासी हवा, जबरदस्त। लोग बुरा माने कुछ भी माने, मैं उठाया चटाई और आ गया अपार्टमेंट के बीच में आके लेट गया। अच्छा लग रहा था, फर्स्ट क्लास। 11:30 बज गए, 1.5 घंटा अप्रॉक्स हो गया। बेटे का फोन है, पापा कहाँ हो तुम? क्या वो गलती किया मेरे को फोन किया? पापा जल्दी आओ। तो बेटे कोई भी किसी का बोले स्टेट, जो जिससे लगाव रखता है वो उसका स्टेट मेंटेन होता है। तो एडेप्टर डेटाबेस और डेटा सेट के बीच में सुनना, और सेशन ASPX और HTML के बीच में। तो बेटे ये पता करो आज कि डेटा सेट से अब जो नया रिकॉर्ड गया वो एडेप्टर के पास गया, एडेप्टर ने कैसे समझा? नहीं हो पाया सिलेक्शन बेटे, नहीं दिनों का नहीं हो पाएगा। कहाँ हो तुम? ये एडेप्टर का साले फिल यूज करते हैं, ये भूल जाते हैं फिल से पहले वो रो स्टेटस मेंटेन करता है, तुम किसको किसको क्या दे रहे हो, और उसी बफर से आके चेक करता है कि कौन सा नया रिकॉर्ड जाएगा डेटा सेट से। बोलो कौन? डेटाबेस के बीच। ना मतलब कहते प्रॉपर्टी का नाम मतलब, प्रॉपर्टी का नाम मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी एडेप्टर में है जो रो का स्टेटस रखती है? तो एडेप्टर अंकल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, लेन देन रखता है, लेखा जोखा। आज हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ CM का पूरे हाउस को जला दिया गया। इट्स ए शेम फॉर द इंडियन नेशन। सारे फाइल जल गए। I don't know. I cannot say like this, but I can say today it's a worst history for Indian nation. We have lost all the papers, and how much we are in debt and how much we are in profit we have lost. New history will be made, and for that history it is a loss for every person in India as a more than 1 lakh rupees. सारी चीज खो दिया इन्होंने। We have lost all the papers. जब मिनिस्ट्री की CM का कुर्सी जल गया तो साले मेरा चेयर क्या बचेगा फिर? सारा कुछ जल गया। कि मेरा मौसेरा भाई वहीं पे है, तो सारा कुछ जल गया भैया, कुछ नहीं बचा। आपकी प्रॉपर्टी का सारा पेपर जल गया। जितना इनका ट्रांजैक्शन था हर कंट्री के साथ, कि हर डेलीगेट्स कहां बैठे थे? उसी बिल्डिंग में बैठे थे। सबका कुछ जल गया। नथिंग इज देयर। इट्स अ ब्लैंक एम्प्टी रूम विद अ ब्लैक स्पॉट। नथिंग इज देयर। Even though you cannot see where is AC and freeze, all are melt down in a rock. It was a temperature more than 1000 degrees.
in that room because it was a massive explosive in that room, in every room because we have got AC with the blah blah features. और हर रूम का कॉस्ट करोड़ों में था, इट इज ए मिनिस्ट्री। और फिर दाम बढ़ेगा, फिर लॉस होगा, फिर डॉलर जाएगी ऊपर, इंडियन नीचे आएगा। अब उसका क्या होगा मुझे नहीं। मैं जो पढ़ा है आर्टिकल्स उसके बारे में बता रहा हूँ कि नाउ वेयर इज इंडियन नेशन एंड द प्रॉपर्टी एंड द मैनेजमेंट। व्हेन दैट रूम इज नॉट सेफ, वेर डैम सेफ। जहाँ पे चिड़िया परिंदा पर नहीं मार सकता है, उस रूम का हर चीज जल गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टेट मेंटेन होनी चाहिए। स्टेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस, कुछ नहीं, जीरो इज देयर। तो बेटे मैं ये बोल रहा हूं अंकल, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं कि मैंने पहले पेज पे 16 रुपए की शॉपिंग करी थी, 16 रुपए की। मैं सेकंड वाले पेज पे गया, 22 रुपए की शॉपिंग करी, अब मन नहीं करता। मैं थर्ड वाले पेज पे गया, सारा जीरो शॉपिंग दिखा रहा है मेरा। क्यों? मेरा स्टेट क्या है बोलो, लॉस हो चुका है। तो हम स्टेट मैनेजमेंट अंकल नहीं बोल रहे हैं, हमें स्टेट मैनेजमेंट का रिजल्टेंट बोल रहे हैं। बोलो कौन? ट्रांजैक्शन। मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही है, पैसा मेरे पॉकेट में है, और ये हम सोच रहे हैं उसने यहाँ पे 2500 की शॉपिंग करी, अगले दुकान पे 4000 की शॉपिंग करी। हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि पैसा मुझे ही देना है पॉकेट से, और उतने पैसे नहीं हो और सामान वापस देना है। इट मेक्स अ वेरी वर्स्ट इंप्रेशन। तो बेटे रिजल्टेंट ऑफ आप स्टेट मैनेजमेंट सोचो क्या होगा, इसे पुअर ट्रांजैक्शन को रोल बैक ट्रांजैक्शन। यस, स्टेट मैनेजमेंट का रियल यूज कहां पे बोलो? ट्रांजैक्शन। पहला पेज पे गए, सेकंड पेज पे गए, आप इसको क्यों नहीं जोड़ते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से? यार दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना, तो पहला पेज का 16 रुपया, दूसरे वाले पेज का 24 रुपया। अरे गधा, पहला पेज प्लस दूसरा पेज कैसे होगा? जब पहला पेज होगा तब ना होगा। तो पहला पेज का सेशन मेंटेन कर, और सेकंड पेज से जोड़ दो। तो अंकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिना स्टेट मैनेजमेंट का हो नहीं सकता, ऑनलाइन शॉपिंग बिना स्टेट मैनेजमेंट की नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता है। एंड अब बंदा का सेशन के ऊपर आता है तो कभी कभी दिमाग सही करता हूं। और इसको पढ़ लेना अंकल, साफ साफ लिखा हुआ इसके 8 पॉइंट्स। हाउ मच इंफॉर्मेशन यू नीड टू स्टोर। किसी को अंकल बोलते हैं ISO बोलते हैं। मेरे सीडैक में याद है कंप्यूटर के केबल का भी ISO लिखा होता था। आपको पता मैं क्या बोल रहा हूं? हर आइटम का ऑफिस में क्या होता है बोलो? ऑडिटिंग होता है कि ना वो बाहर जा सकता है ना वो अंदर आ सकता है। हर आइटम का स्टेट मेंटेन है। मैं भी ट्रेनिंग में गया, जानता मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में ट्रेनिंग में गया, एक दिन गया अंकल, आपको पता मैं फरवरी में ट्रेनिंग यहीं पे ले लिया, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मेरा लैपटॉप तक नहीं जा सकता था अंदर, अगर गया तो उसका नंबर नोट करके जब निकल कर आया उसी नंबर नोट से मैच हुआ। हमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ऑफिस की पॉलिसी है, हम उसको मना नहीं कर सकते। हर चीज का बोल क्या होना है? स्टेट मेंटेन। एक दुकानदार तो को पता है कि क्या बेचे और क्या नहीं बेचे, और कितना बेचे और कब तक बेचे, और जब कल आए तो ये पता करें हमने लॉस कितना बेचा था। ये क्या स्टेट नहीं है? तो हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू नीड टू स्टोर? डज द क्लाइंट एक्सेप्ट? डू यू वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइंट और द सर्वर? और अंकल ये लाइन लाजवाब है। Is the information is sensitive? What performance and bandwidth criteria do you have for your applications? आप स्टेट मेंटेन करने चले, कोई कॉपी है, कोई बही खाता है, क्या बिजनेस हो रही है और क्या क्या लिख रहा है उस कॉपी के अंदर, सेंसिटिव। तो स्टेट मैनेजमेंट कहां नहीं? For every transaction अंकल there is a state management काम किया।
and obviously there are multiple ways I can go for maintaining the state. Multiple ways. कोई एक्सेल की शीट पे रखता है, कोई अपने डायरी में लिखता है, कोई अपने प्रिंट आउट रखता है, कुछ भी करता है, मेंटेन स्टेट। नहीं होता है तो अपने दिमाग में रखता है, वो कहीं ना कहीं स्टेट रखता है। इट इज कॉल्ड सिलाइजेशन। बोलो कौन? कहीं ना कहीं रखता है, और रखने का जो प्रक्रिया है वो सिलाइजेशन। और सोचना क्या है? बोलो स्टेट है। कितने का सामान लिया? पापा मैंने उसको 100 रुपए दिए थे, उसको 40 रुपए, उसको 30 रुपए। चल कागज पे लिख, कागज पे लिख। ये क्या है? स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, ये सिलाइजेशन। और तुमने याद करके जो बोला, ये क्या बोलो? स्टेट। अगर तुमने नहीं लिखा तो वो क्या बोलो? नॉन परसिस्टेंट स्टेट। भूल गया, सर्वर डाउन हो गया, जो था सब चला गया। लिख दे कागज पे। मुझे पता था तो भूल जाएगा, मुझे पता है यार, मुझे पता है। तो स्टेट अगर है बेटे तो उसको मैनेज किया जा सकता है। सुनना, अगर स्टेट है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा मैनेज करो कि दोबारा उसको फिर ऑब्टेन किया जा सकता है, और किसी भी हालात में ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बोलो कौन? सिलाइजेशन। इज कॉल्ड आउटप्रॉक्सेशन। इज कॉल्ड आउटप्रॉक्सेशन। अदरवाइज यहां तो है, यहां पे क्या है? नॉन परसिस्टेंट है, और जो कहीं पे डाल दिया वो परसिस्टेंट है। इस सेशन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और सिंगल अंकल ये लिंक एक ही बेटे टॉपिक के ऊपर लेता है। मजा आना गले में नॉलेज में घुसे बाहर। बस सिंपल टॉपिक सर्च करना है। एक्सप्लोरिंग सेशन क्या बंदे ने लिखा है, जबरदस्त। इस बंदे ने एक बुक बना दी इसी टॉपिक के ऊपर। देखना, लिंक देखेगा, देख टॉपिक का नाम देख, पूरी डॉटनेट के बराबर एक टॉपिक नजर आती है। और सिंगल है सेशन। पहला ही क्वेश्चन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेशन। और अंकल वही स्टेट उस आदमी को कोलैप्स भी कर सकता है। क्या बोलते हैं? अब तक उस हादसे से वो बंदा अब तक उभर नहीं पाया। इस घटना के कितने साल हो गए, अब तक उस बंदा उस चीज से उभर नहीं पाया, उसका स्टेट बदल नहीं पाया। स्टेट अगर फिक्स हो गया, उसी को बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। या बीबू अग्रवाल, जिसको मैं शादी में गया परसों नलायक, मैं तो चलो अपना चेहरा पढ़ा के खराब कर लिया, उसके नीचे पूरी ब्लैक स्पॉट, इतना मोटा ब्लैक कलर का। डॉक्टर का बेटा हूं, थोड़ा लगा ड्रिंक करता होगा, इतनी ओवरनाइट जगता होगा। हमने 2 केसेस बनाए मन में उसके प्रति। पूरा चेहरा गोरा, यहां पे ब्लैक पूरा क्यों है? पूरा स्पॉट ब्लैक का, मोटा मोटा था। तो मैंने कहा डोंट माइंड बेटे। अब लगा कि पढ़ा लिखा बंदा, जैसे उसका 5 का बीटेक है और 10 की बात है ये, तो मुझे लगा ड्रिंक करता होगा। बट इंक्वायरी कोई करने आए, उससे मैं पूछ नहीं सकता। उसकी मैंने 100 रुपये की रसीद काट दी। लड़का नेक्स्ट डे क्लास में आया, मॉर्निंग की बैच 8 से 9, जॉब में था वो, सेफनेट में था, सेफनेट में उन दिनों। सुबह क्लास करने आया, सर 8:30 में क्लास से बाहर निकल गया। मैं कुछ नहीं बोला, मुझे लगा हो सकता कुछ काम आया ऑफिस का, चला गया। प्रेम बोला, वो तो नीचे चाय पी रहा है दुकान पे। तो ऐसा हो सकता है बेटे, क्लास के लाया था। खिड़की सड़क खोल के देखा, वास्तव में चाय पी रहा है। मुझे लगा सर रात का जगह होगा, कोई बात नहीं। हम नेगेटिव सोच कैसे लें? डेवलपर है भाई, वही सेफनेट ग्रेटर नोएडा के रोड पे अच्छी कंपनी है। मसला का BC के ऊपर होता है। कमीना नेक्स्ट डे आया, वेडनेसडे को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की बैच थी। 15 मिनट क्लास की भी ना होगी, बाहर निकल गया, बाहर जाके बैठ के अखबार पढ़ रहा है। He has lost